کچھ باتیں کرتے ہوئے یوں فیل ہو رہا ہے کہ جیسے میں اپنے جانے کی دوریا نہیں اپنے جانے کی، اور یہی سوچ اور یہی فکر ایک ترقی کی ضمانت ہے، اور یہی سوچ ہمارے اسلاف کی تھی۔ تو دیکھیں نا، جب ایک آدمی محدث اعظم سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ آباد میں ملاقات کے لیے جاتا ہے، ان کا مرید ان کی خدمت کرتا ہے اس دور میں، تو آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس وقت حزب الاحناف کا بڑا عروج تھا، تو آپ نے فرمایا وہ بھی تو میرا ہی جاتا ہے، تو یہ خدمت آپ ادھر جا کے کریں تاکہ اس ادارے کو بھی تو آگے لے کے چلیں۔ تو ہمارے اسلاف کی یہ محبت، یہ پیار، یہ چیزیں تھیں، تو وہی جھلک، وہی لگن، وہی پیار، وہی محبت، وہی شفقت یہاں پہ ملی، اور بہت خوشی ہوئی ہے۔ تو میں عالی قدر، عظیم المرتبت پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب، امیر جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب ماشاءاللہ، اور گرامی قدر عزیز محترم جناب پیر سید محمد احمد شاہ صاحب بخاری محتمل جامعہ حاضر، اور جناب محترم مقام پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب بخاری، حضرت العلام مفتی عبدالرسول رضوی صاحب، علامہ مفتی محمد عمران ثاقب اویسی صاحب، علامہ نعیم المصطفیٰ قادری ناظم اعلیٰ جامعہ حاضر، اور عظیم طلباء اور میرے ہم نوا سفر یہاں اور جامعہ حجویریہ میں کثیر تعداد میں موجود ہیں، حضرت مولانا بلال سعید صاحب، مولانا عامر سہیل صاحب، مولانا فیاض صاحب، دیگر احباب ادارے کے، اور میرے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس مرکز کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، کہ جس انداز میں، جس نہج پر یہ ادارہ کام کر رہا ہے، جو ایک ذریعہ بنا یہاں پہ آنے کا، وہ صرف ایک ہی ہے، ایجنڈا پوائنٹ ون، بس وہ یہ جو آپ کا کام ہے، یہ مجھے یہاں لے کے آئے۔ کہ پہلی گفتگو بھی میری یہی ہوتی تھی، غالباً 2015-16 سے یہاں کے اسٹوڈنٹ طلباء نے جب جامعہ حجویریہ کا سفر شروع کیا، تو طلباء میں قبلہ شاہ صاحب اور آپ کی ٹیم کے جو اثرات وہاں فیل ہوئے، تو دل کے اندر ایک محبت کا پہلو چل نکلا۔ تو پھر میں ساتھیوں سے باقاعدہ پوچھتا تھا، پھر اسی دوران قبلہ شاہ صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ہوا، تو اور محبت بڑھی۔ تو اب اسی سفر میں ہم نکلے تھے کہ بیٹے کا اور مولانا بلال سعید کا رابطہ چلا، جس جو باتیں ذہن میں سمائی تھیں، یہاں کے ہونہار طلباء کو وہاں دیکھ کر ان کی توجہ، ان کے اندر روحانیت کا ایک عنصر، تعلیمی مراحل کی طرف شعبہ ایجوکیشن میں ان کا ایک لنک جو وہاں مجھے فیل ہوتا تھا، تو یہ باتیں چاہتی تھی کہ نہ جاتے ہوئے بھی یہاں پہ جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ دور دراز کے دوست ہمارے کس طرح قوم کو تیار کرنے میں مصروف ہے۔ تو آج یہاں آ کر یہ ڈسپلن، یہ ماحول احباب کے ذریعے
ادارے کی جو تفصیلات سامنے آئیں، کیونکہ ہم ایک تنقیدی اور تعمیل دو سوچیں ہوتی ہیں اور جس پر ہم چلتے ہیں، تو ایک ہم بھی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو لہذا ان حوالوں سے جب اس ادارے کا کام دیکھا سنا، کویشچن بھی ہوتے رہے بیچ میں، اور اس میں جو آنسر ملے اور یہ چیزیں جب سامنے آئیں تو حقیقت یہ ہے کہ دل کو بڑی تقویت ملی ہے یہاں پہ آ کر، کام دیکھ کر، محنت دیکھ کر، لگن دیکھ کر، توجہ دیکھ کر، اور پھر بالخصوص سربراہ ہم سب کے قبلہ شاہ صاحب کی خدمات بے لوث سن کر دوستوں سے بہت خوشی ہوئی کہ اے کاش کہ ہمارے ہر آستانے سے یہ آواز اٹھے اور یہی سوچ اور فکر ہو جائے تو جن کے بارے میں ہمیں کچھ کہنا پڑ رہا ہے اور آج جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، جس پر تھوڑی سی میں نے توجہ دلانی ہے، ہم نے مل کر توجہ کرنی کہ یہ چیلنجز بھی اس وقت ہمارے سامنے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، تو ان کا بہترین حل یہ ہے کہ جو قبلہ شاہ صاحب نے ہمیں عطا کر دیا ہے کہ خود آستانوں سے نکل پڑو۔ جب تم دین کے ساتھ دین کے لیے اٹھو گے نا، تو جب تم دین کے لیے رات دن محنت کرو گے، جو ہمارے اسلاف کا ایک ترہ امتیاز تھا، تو جس پر آپ کام کرو گے تو جتنا دینی کام مشن بلند ہوتا جائے گا تو آپ کے درجے بھی اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ دنیا، یہ قوم و ملت، ان کو تو ضرورت ہے، ان کے دلوں میں محبت میں اور آپ نے پیدا نہیں کرنی، یہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ ہم نے اس مالک کے کام کو لے کر چلنا ہے، تو رب تبارک و تعالی پھر وہ انسان کو عزتیں بھی دیتا ہے، راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو کانٹے آتے ہیں، ان کا حل بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبوت کا منصب اللہ عالم حیث یجعل رسالہ، اس عظیم منصب کے مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے تبلیغ دعوت اسلامیہ کے 4 مراحل ہیں، پہلا مرحلہ بعثت سے جو 3 سال تک ہے وہ خفیہ دعوت، اور اس میں وہ لوگ اسلام میں آئے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں کسی نہ کسی طرح محبت میں موجود، اور حضور علیہ السلام نے، حالانکہ کیا حضور کو ڈر ہے؟ نہیں ڈر، کوئی خوف ہے؟ کوئی دشمنوں کی فکری یلغار، نظریاتی کوئی چیزوں کا اثر ہے؟ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ کیوں؟ آپ کا مددگار کون ہے؟ اللہ رب العالمین، تو پھر حضور کا کیا ڈر ہے؟ لیکن بھائی، حضور کو کسی کا ڈر نہیں تھا۔ پھر غرباء و مساکین، متوسط اور اس سے بھی نیچے کا طبقہ اکثریت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوا ہے۔ امرات القلیل و کالمعدوم، اور اکثریت جو ساتھ آئی حضور کے ساتھ اس خفیہ مراحل میں، وہ کون لوگ تھے جس پر کفار کو کہنے کا بھی کچھ موقع ملا، لیکن انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جب یہ دین کے ساتھ مخلص ہوں گے تو پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جب حضرت عمر ایک خطے علاقے کا نہیں، 20 لاکھ مربع میل کا جو ہے اس کی سلطنت، اس کی خلافت، اس کا آرڈر، اس کا نظام چل رہا ہوگا، اور دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، جس نے یہاں تک حضرت عمر کو پہنچا دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، حضرت زید بن حارثہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ یہ وہ بنیادی ابتدائی کچھ لوگ ہیں۔ پھر ان کی جو تربیت کا نظام تھا وہ کیا تھا؟
हुजूर इनको मक्का की वादियों में टाइम देते थे कि वहां मेरे पास आना और एक खुफिया तरीके से उनको अल्लाह ताला के बारे में, वहदानियत के बारे में हुजूर बताते थे छुप के। फिर ये तादाद 40 तक पहुंची। आप जानते हैं, मैं थोड़े इशारे करके आगे जाना चाहता हूं ताकि एक बुनियाद पता चले ना कि वो इस्लाम और जिसने इस अंदाज में आगाज किया, फिर वो इस्लाम किस तरह बढ़ा और किस तरह फैला। और फिर जहां पर कहा जा रहा था, कुफ्फार की आवाजें थी कि अल्लाह के नबी के साथ चंद गुरबा मसाकी लोग हैं, उधर तवज्जो की जरूरत नहीं है। कुछ अरसा उन्होंने इस बात को यूं भी समझे रखा। तो कुरान बयान करता है कि तुम्हारा फैसला अगर यही है, गुरबा ही, नादार ही दीन में आते हैं, तो फिर गौर कर लो मूसा अलैहिस्सलाम के साथी कौन थे, नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो लगे थे वो कौन थे, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ जो लगे थे वो कौन थे। वो भी तो नादार थे ना, कमजोर थे ना। बज़ाहिर हालात के लिहाज से बात कर रहा हूं। और मुआशरे में उनके मुखालिफीन जो उन्हें समझ रहे थे, लेकिन कमाल की बात यह है कि जब ये लोग उठे तो फिर क्या काम कर दिखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुफका साथी जब उठे, 313 ने बदर के मैदान के अंदर क्या मार्का कायम किया, क्या ताकत आ गई उनके पास, क्या जवानी। अल्लाह की मदद साथ है, हुजूर साथ है, सारी बातें। लेकिन मैदान में कौन उतरे थे, खड़े कौन थे कुफार के सामने। अल्लाह ताला ने उनकी सूरत में जब काफरों पर रोब डाला तो सामने कौन खड़े। ये एक तारीख है जो हमें इस बात पर पैगाम देती है कि इस्लाम का काम करो, दीन का काम करो, और उसमें जो रुकावटें, जो मामलात, जिन चैलेंजेस का तुम्हें सामना करना पड़े, उससे ना तो घबराना है। और हाँ, हिकमत अमली जिस तरह के आप अलैहिस्सलाम ने अपनाई है, यकदम हमला नहीं कर देना, एक हिकमत के तहत तरीक के साथ तुमने दीन के मामलात को लेकर चलना है। जब यही सवालात होते हैं ना, जैसा कि फिक्र सीरा में डॉक्टर मिस्री हैं मोहम्मद रमजान अलबूती ने क्या कहा, उसने कहा कि ये जो चैलेंजेस सामने आते रहे ना, आप अलैहिस्सलाम के लिए इनका मुकाबला कोई मुश्किल नहीं था। अगर हुजूर से पहले वाले पैगंबर हाथ उठाते हैं तो उसी वक्त मदद आती है। क्या हुजूर के लिए नहीं आ सकती? जिनके दराजात सबसे आला हो औला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, उन रसूलों से आला हमारा। उनके लिए क्या मुश्किल है कि या अल्लाह इनको नेस्त नाबूद कर दे, उसी वक्त हो जाएंगे कुफार। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। तो फिर एक हिकमत के साथ हुजूर बढ़े कि आप अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक इस दीन इस्लाम में चलना है। हर दौर में अहबाब आते रहे, अपना हिस्सा डालते रहे। आज जो रुफका, अहबाब, अहले इल्म हजरात अपना हिस्सा डाल रहे हैं, ये ज़ाहिर है इनकी जिम्मेदारियां हैं। बज़ाहिर हम समझें ना समझें, लेकिन जितने हम इस हॉल के अंदर मौजूद हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि दीन का परचम हमने उठाना है, दीन का काम हमने करना है। अब एक खास पहलू पर मैं आना चाहता हूं, वो ये है मेरे दोस्तों कि अल्लाह करीम कुरान में इरशाद फरमाता है, इल्हाद पर जरा आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि आज के दौर में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा है। तो आज जो फितना हमारे अंदर बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, वो मुल्हिदीन है, वो इल्हाद है। मुल्हिद की वो एक फिक्र है, वो एक सोच है। आप हैरान होंगे कि जिन्हें मालूम है हमारे असातिज़ा और अकाबिरीन से, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ
स्टूडेंट मौजूद हैं, तो इस लिहाज से मैं अर्ज़गुज़ार हूं कि मुल्हिद जो है वो हमारी बुनियाद को पड़ गया है। हमारे अकीदे पर मुल्हिद ने हमला कर दिया। मुल्हिद की सोच और फिक्र क्या है? मुल्हिद कहता है कोई खुदा का तसव्वुर नहीं है। ठीक है, इल्हाद की सोच कहां से चली? यूरोप से डेवलप हुई, और इस फिक्र पर ये कितना काम कर चुके हैं कि आज दुनिया का, आपको एक सर्वे में बता देता हूं कि आप थोड़ा गौर फरमाएं कि मुल्हिदीन लोग जो हैं इस वक्त ये सोच कि रब तबारक व तआला नहीं है, और डायरेक्ट लोगों पर इसका असर पैदा करके कितने मुल्कों के अंदर इनका नेटवर्क फैल चुका है। इस हवाले से बड़े इख्तिसार से इजमाली तौर पर एक तजजिया आपके सामने रखने लगा हूं, तो जरा गौर फरमाएं कि इल्हाद की सोच इस वक्त दुनिया के अंदर मगरबी सोच, मगरब की जो फिक्री सोच है, जो शोबे एजुकेशन के हवाले से उनकी सोच है, वज़ाक़ता के लिहाज से जो उनकी सोच है, और एक हमारी इस्लामी फिक्र, हमारा इस्लामी निज़ाम और कुरान और सुन्नत, हमारा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, हमारे लिए वो एक अमली नमूना, लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल जो इस वक्त है दुनिया में, ईसाइयत, हिंदुइज्म, यहूदियत, ये पीछे है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस है हमें, वो मुल्हिदीन के, वो इल्हाद है। और आप गौर फरमाएं कि इस वक्त चाइना मुल्क हमारे पड़ोस में, इस वक्त मुल्हिदीन जिनकी ये फिक्र और ये सोच है कि कायनात के अंदर कोई खुदा नहीं है और ये निजाम खुद चल रहा है, इस सोच के लोग चाइना में कितने पाए जा रहे हैं? जनाब, चाइना की आबादी तकरीबन 1.5 अरब के करीब है, और इस 1.5 अरब की आबादी में आप देख लें कि 40% लोग मुल्हिद हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 60 करोड़ बनती है, जिनकी ये सोच हो चुकी है कि कायनात में खुदा नहीं। हालांकि ईसाइयत में आप भी जानते हो कि किसी न किसी तरह हमेशा ये तसव्वुर रब के हवाले से मौजूद रहा है, गो कि इन्नल्लाह सालिसु सलासा दीगर, लेकिन अल्लाह ताला का जिक्र तो वो लाते रहे, कुरान ने भी बयान किया, लेकिन ये सोच तो वो सामने आ गई कि बिल्कुल ही रब ताला की नफी कर दी गई। तो हमारे पड़ोस चाइना में इस वक्त की जो तहकीकात हैं वो ये सामने आ चुकी है। बहुत सारी बातें आप सुन लें, लेकिन बस इशारे करता हूं वक्त की किल्लत के पेश नजर। और जापान, जिसकी कुल आबादी जापान की 12 करोड़ 68 लाख है, जिसमें 30% यानी 3 करोड़ 80 लाख लोग इल्हादी सोच के मालिक बन चुके हैं। अंदाजा फरमाएं कितनी तेजी के साथ यूरोप की फिक्र लोगों के अंदर किस तरह फैल गई। इतने लोग जब रब तबारक व तआला का सिरे से ही इनकार कर रहे हैं, फिर इसके साथ आ जाइए यूरोप का एक इलाका है चीन, उसकी आबादी सिर्फ है जी, छोटा सा इलाके की बात कर रहा हूं, पूरे के लिए 1 करोड़ 7 लाख में 40% यानी तकरीबन 43 लाख लोग जो हैं वो मुल्हिद हैं, जिनका कोई मजहब नहीं। हालांकि हमारे यहां इन्न दीन इंदल्लाहि इस्लाम। अब ये लोग, और ये सोच को कितना अरसा हुआ है ये भी सुन लें, हमारा इस्लाम तो सदियों से आ रहा है, लेकिन इनको तकरीबन 150-200 साल के अंदर इन्होंने इतना काम कर दिया है
तो आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है मेरे दोस्तों, जो 200 साल के अंदर इतना काम कर गए कि जनाब जिनके नजरियात पहले ही दुरुस्त ना थे, जो किसी ना किसी तरह रब ताला को मान रहे थे, उनके अंदर इन्होंने ये सोच बदल कर रख दी और इतनी तादाद के अंदर लोगों को मुल्हिद बना रहे। इसके साथ फ्रांस के अंदर से जो कि ईसाई हैं, लेकिन उनकी टोटल आबादी में 20% लोग यानी 1,38,00,000 लोग जो हैं वो इल्हाद की सोच में दाखिल हो चुके हैं। अब इस तादाद में जब लोगों को रब तबारक व ताला का जो एक तसव्वुर है वजूद बारी ताला, इस्बात बारी ताला, तौहीद के हवाले से जो एक हमारा कंसेप्ट है, जो हमारी एक फिक्र है, जिस पर हम कायम व दायम हैं, जिस पर 1,24,000 पैगंबर कमोबेश या अल्लामा निब्रास के मुताबिक 2,24,000 पैगंबर कमोबेश जिनका दुनिया में आने का जो मकसद था, इस एक फिक्र ने जनाब जो यूरोप से उठकर 150-200 साल के अंदर इतना इनकलाब बर्पा कर दिया है। फिर हमारे पड़ोस हिंदुस्तान, इंडिया में, जहां आप जानते हैं कि तकरीबन 1.25 अरब आबादी है, 1.25 अरब के करीब आबादी है, जिसमें जनाब 28,70,000 लोग इल्हाद की सोच के अंदर रंगे जा चुके हैं। अब मैं आऊंगा पाकिस्तान की तरफ कि आप कहेंगे कि पाकिस्तान के बारे में मैं क्या कह सकता हूं। इस वक्त अमेरिका में एक लड़का है, नौजवान, जिसकी उम्र है 35-36 बरस। वो सेंटर मॉडल लाहौर में उसने मैट्रिक किया था। इस वक्त वो अमेरिका में है और वो हारिस नामी लड़का जो है वो इल्हाद का सबसे बड़ा काम जो अमेरिका में कर रहा है वो पाकिस्तानी नौजवान कर रहा है। अब अंदाजा फरमा लें कि हमने तो जो चैलेंजेस, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता कि बिला शाह साहब काम कर रहे हैं इस मैदान में, खूब जानते हैं कि इस वक्त हमारे अंदरूनी मामलात, मुल्की मामलात, अंदरूनी से मैंने खास इशारा किया, वो मामलात हमारे, और फिर मुल्की मामलात, फिर जनाब सियासी, मजहबी, दीगर चैलेंजेस जो कभी थे, अब भी हैं और ये रहने। लेकिन इसके साथ साथ जो एक नई सोच, नई फिक्र आई, उन चैलेंजेस का मुकाबला किसने करना है? क्या जिन्होंने 200 साल के अंदर इतना काम कर दिया है कि आपका जो तालीमी निसाब है, आप अंदाजा फरमा लें इस तालीमी निसाब के अंदर इस सोच ने क्या इनकलाब बर्पा किया है, यूनिवर्सिटियों के माहौल में दोस्त खूब जानते हैं। फिर और यानी फहाशी के माहौल का जो असर, हम भी इससे महरूम नहीं रहे, दीनी इदारों के लोग, मादरत के साथ हम भी इससे महरूम नहीं रहे कि आज हमारा एक नौजवान स्टूडेंट जिसकी सुबह दोपहर शाम शबो रोज एहतिमाम, इंसिराम, एजुकेशन, सारा निजाम एक मखसूस मनहजो उसलूब के तहत चल रहा होता है। हमारा वो स्टूडेंट अगर उरियान नावल पढ़ना, उरियानी तस्वीर, मीडिया, इन चीजों को वो पसंद करता है, तो ये तो यूरोप की सोच है, इस्लाम की सोच तो नहीं है। मादरत के साथ नाराज नहीं होना, आपस में मैंने पहले जुमला बोला था, इसलिए ये एक तलख हकीकत है, ये एक समझिए पैगाम है। तो अकाबरीन के तो इल्म में ये बातें आ चुकी हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है, दीगर चैलेंजों के साथ ये सोच है कि जब पाकिस्तान हमारा इस्लामी जमहूरिया निजाम, हमारे अकायदीन की, हमारे कायदीन की कुर्बानियां, लेकिन हमारे अकायद व नजरियात से जब हमारे वजूद सर से लेकर पांव तक हमारे मुआशरे में, हमारे दीनी इदारों में,
हमारे शोबा एजुकेशन के हर मकाम पर आज आप 100 बंदा खड़ा कर लें, फिर उनका इंटरव्यू करें, तो जनाब आप देख लें कि उनमें गैरियत, यूरोप की सोच कितनी है और इस्लामी सोच कितनी है। आपके लिए फैसला करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो पाकिस्तान में मुख्तसर ये है कि किस अंदाज में ये सोच डेवलप कर गई कि इन्होंने कहा कि इस तरह, जिस तरह पाकिस्तान में 24 मार्च 2017 को एक फितना उठा, अय्याज नामी शख्स था और इसने 2 और अपने जैसे मिलाकर वेबसाइट कायम की और जिस पर पाकिस्तान में इसने इल्हाद का काम शुरू किया और लोगों के अंदर, मतलब पढ़ा लिखा तबका जो होता है आजकल, आप हैरान होंगे, कुछ बातें ये आप सुन रहे हैं, तहकीकन पेश कर रहा हूं कि अगर एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है और तालिबा वो लेक्चर सुन रही है, फिर एक स्टूडेंट सवाल करती है कि जनाब आप इल्हाद या इस तरह की बातें ना करें, मैं खुद मुल्हिद सोच की मालिक हूं, सिर्फ आप मुझे लेक्चर दें, मुझे दीगर बातों की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये हमारा पैसा जो इन इदारों पे लग रहा है और वहां आगे सोच तो ये आके बैठ गई और इस सोच को हमने क्या दिया, हमने ये सोच क्यों ना चेंज की। आखिर वो तालिबा जो आज यूनिवर्सिटी तक पहुंची है, उसको क्या घर में माहौल नहीं मिला, इब्तदाई तालीम के मराहिल से वो नहीं गुजरी, उसको घरेलू खानदान बिरादरी मुआशरे का माहौल नहीं मिला, उसको आले इल्म का माहौल नहीं मिला, अपने इलाके वतन और मसाजिद की जो हमारी तकारीर है, जो एक खास फिक्र पर है माजरत के साथ, तो वो भी वो करनी है हमने, वो तो हमारे ईमान का हिस्सा है। फजाइल कमालात, ये चीजें, इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल, वो तो हमने करनी है, वो हमारा ईमान है, इसके बगैर हम नहीं। लेकिन इसके साथ साथ हालात का सामना क्या हुजूर ने नहीं किया, सहाबा इकराम ने नहीं किया। जो चैलेंजेस थे हुजूर उसके मुताबिक नहीं चले। मक्का में भी चैलेंजेस हैं, मदीना में भी चैलेंजेस हैं, गज़वा खंदक के अंदर भी चैलेंजेस हैं, बदर के मैदान में, ओहद के मैदान में क्या हुजूर फरमाते कि ना ना इन चैलेंजेस का हमने मुकाबला नहीं करना, मैं तो यहीं पे बैठा हूं, जाओ साहबा तुम जाओ मैदान में। ना ना, जैसा फितना जिस शक्ल में नमूदार हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह बनफ्स नफीस मंजर आम पे आए, मैदान में आए। कमाल की बात करते हैं। तो आज एक तालिबा ने ये सवाल उठाया, तो ये इसके पीछे पूरी एक लॉबी है, पूरा एक अकल और कई सारी चीजें जो है वो ज़हन में लाता है कि ये क्या हो गया, और आज बहुत नीचे आ जाते हैं। तो ये मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सोच पैदा होना शुरू हो चुकी है और हमारे दीनी इदारे भी इससे महरूम नहीं है। जिस तरह के अभी मैं इशारे कर गया हूं कि जब हमारा बच्चा स्टूडेंट कुरान और हदीस सामने पड़ा हो जी, और रात की तन्हाई हो जिसमें इंसान अल्लाह के कुर्ब की तरफ बढ़े, अपने तालीम की सूरत में, मुताला की सूरत में, जिक्र फिक्र की सूरत में, नमाज तहज्जुद की सूरत में, नवाफिल, इन चीजों को भी हमारे असलाफ ने बहुत टच रखा, जिससे उनके रूहानी मदारिज भी, जिस तरह यहाँ पर भी एक माहौल के लिए कोशिश है। तो लिहाजा जिस तरह मुझे पता चला कि किबला शाह साहब तसव्वुफ के हवाले से भी यहाँ पे खुद लेक्चर अता फरमाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि पहले हमारे असलाफ में आला हज़रत ने इरफान और शरीयत में क्या फरमाया, आपने फरमाया कि एक आदमी की उम्र 100 बरस है तो 75 बरस जो हैं उलूम दीनिया और 25 बरस तसव्वुफ को यानी अदब को। ना ना, उल्ट कर गया हूं, 75 बरस अदब और तसव्वुफ और 25 बरस उलूम दीनिया, ये आला हज़रत ने फरमाया इरफान शरीफ। तो अब आला हज़रत अहमद रिज़ा खां फरमाए रहमतुल्लाह तआला अलैह के 75 बरस जो है वो अदब और तसव्वुफ अपनी रूहानियत पर मेहनत करो,
और 25 साल दीगर उलूम के अंदर तो मेहनत और कोशिश करो। तो अब बताएं आप कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं। हमारे एक और बिल्कुल यानी मिसाल एक दे रहा हूं कि अगर आज मादरत के साथ असातिज़ा भी बैठे हैं, किबला शाह साहब बैठे हैं, एक तालिब इल्म होने की हैसियत से इन माहौलों को देखते हुए अर्ज़गुज़ार हूं कि अगर एक तालिब इल्म को जो एक खास माहौल के अंदर है, अगर उससे भी हम कहें कि बेटा नमाज का टाइम हो गया, उठो नमाज पढ़ो, फिर हम पूछें कि आपने फलां नमाज नहीं पढ़ी। एक होता है उज़र, रोजाना तो नहीं होता। हाँ जी, आपने नमाज नहीं पढ़ी, आप जमात में नजर नहीं आए, आपने फलां काम गलत किया, आपने ये नहीं किया, फलां नहीं किया, ये ठीक है। गलतियां ये चीजें हिस्सा रही हैं, लेकिन इतना भी तो नहीं ना कि जितना आज हम आगे निकल गए कि हर नमाज के लिए ही कहना पड़े कि भाई आओ नमाज पढ़े। तो जिन्होंने दूसरों को दीन और नेकी की तरफ लाना था, उनको तो इस तरह से तैयार किया जा रहा है। फिर असबाब की तरफ आए, तालीम की तरफ, मुताला की तरफ। जब कोई उस्ताद पहरा ना दे, हमारा मुताला नहीं होता, निगरान कोई ना हो, तो फिर हम इन मुल्हिदीन का हम मुकाबला करेंगे। क्या करेंगे हम मुकाबला? दुनिया की ये जो जलगार यूरोप की जो जनाब 150-200 साल के अंदर जिन्होंने दुनिया को लपेट में लेकर रख दिया है, तो हम उनका मुकाबला करेंगे कि जब जो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, जिन्हें हमने करना है, वहां पर तो हमारी ये हालत होगी कि जो जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब हमने कलमा शरीफ पढ़ लिया, दीन इस्लाम में दाखिल हो गए, आकिल व बाशऊर हो गए, हमें दीन समझ आ गया, पता चल गया अल्लाह की वहदानियत, नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत और आने का मकसद, जब ये सारी चीजें वाज़ेह हो गई, तो फिर हमने क्या करना था? हमने एक दूसरे को दीन तो सिखाया हुजूर ने ये नहीं फरमाया, इब्तदाई मराहिल हैं, हालांकि हुजूर इबादत के तरीके बताते हैं, रब ताला की वहदानियत और वजूद बारी ताला, इस बात बारी ताला, अकायद की जान, ये सारी चीजें हुजूर बताते रहे, हुजूर तरबियत तो फरमाते रहे। लेकिन क्या सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान की इबादत भी ऐसी थी? और जिनके लिए हजरत अरकम का घर हुजूर ने मुकर्रर किया था, हाँ जी, वो किस शौक से आते थे हुजूर से दीन की इबादत की तरबियत लेने के लिए। तो इस तरह ये सारी चीजें हैं, इजमाली तौर पर मैंने अर्ज की हैं, इशारे किए हैं, तो मेरे दोस्तों इस पर गौर करें। इसी तरह पाकिस्तान में इस वक्त ताजा तरीन बातें जो सामने आ रही हैं, उस हवाले से इशारा कर रहा हूं कि इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात की, हमारे अकाबिरीन की जो खिदमात हैं, कोई माने या ना माने, हमें इससे गरज नहीं। हमें इससे गरज है कि हमारे असलाफ की जो मुल्क पाकिस्तान के हवाले से जो खिदमात हैं, क़यामत तक इन्हें कोई नहीं मिटा सकता। उनके असरात को तो जायल करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इस मुल्क पाकिस्तान से जो एक सूफियाना निजाम है, एक अदब का निजाम है और एक जो तालीम का निजाम है, इनको बदलने के लिए मुख्तलिफ सूरतें, तरीके इख्तियार हो रहे हैं। लेकिन ख्याल करना, जो हमारे अकाबिरीन का यहाँ पर जो पहरा है, जो तसल्लुत है, जिनके चमकते दमकते रोशन जनाब उनके मज़ारात मौजूद हैं और उनसे उठने वाला जो रूहानी फैज है, वो इनका कला कमा कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? बात तो इस पर है। तो ये असरात जायल नहीं होंगे। कहीं मेरी बातों से लम्हे के अंदर मनफी पहलू भी आते हैं ना, तो याद रखें, मनफी पहलू में तो हम जब पुरजोर अपने ध्यान को लेंगे कि जब इन जवाबात, अब सैकड़ों एतराजात उनके कुरान के हवाले से मंजर आम पर, सैकड़ों, छोटी बात नहीं कर रहा हूं,
किस आयत को उन्होंने नहीं छोड़ा? यूरोप की सोच रखने वालों ने मसलन उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलके बल्कीस का तज्जिया किया। उन्होंने कहा कि जिसकी सल्तनत हवाओं, चरिंद परिंद दरिंद पर चलती हो, तो उसको बल्कीस का इल्म नहीं था। ये एक एतराज है जिससे वो लोगों को अपनी तरफ खींचते। और अगर शाम में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मौजूद हों और जनाब हुद जो है वो पैगाम रसानी शाम से यमन जाए, यमन से खबर लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आए, तो इसका मकसद तो फिर ये हुआ कि जनाब उसकी सोच हुद की कहां तक है और सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत और कुव्वत कहां पे। ये एतराजात हैं। इसी तरह वो चींटी का वाकया, उन्होंने कहा ये कैसे? फिर तुम्हारा कुरान बयान करता है कि जमीन और आसमान की हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। इस पर उनके बेशुमार इतराजात। उसने कहा ये कैसे? इस पर कोई दलील पेश कर। अब कुरान जिन्होंने रब तबारक व तआला का इनकार कर दिया है, तो कुरान किसने अता किया? रब तआला ने। तो जिन्होंने रब तआला का इनकार किया, आप हवाले में हदीस पेश करेंगे कि अल्लाह के नबी ये फरमाते हैं, वो कहते हैं हमारा एतराज तो तुम्हारे रब पर है, हम तो तुम्हारे रब को ही नहीं मानते, ये कायनात खुद ब खुद चल रही है, इसका कोई चलाने वाला नहीं है, ये तो ऐसे बनी ऐसे बनी ऐसे बनी ऐसे चल रही। अगर रब है तो हर चीज का एक मादा है, रब तबारक व तआला को मादा पेश करो। हम कहते हैं कि जी अल्लाह ताला इन चीजों से पाक है, तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मेरी बातें कुछ समझ आ रही हैं? परेशान तो नहीं हो गए? कुछ परेशान होना भी नहीं। परेशान तो वो हो कि जिनके पास दलाइल नहीं है, हैं जी, या जिनके ईमान के अंदर कमजोरी आ गई हो। आपके ईमान भी पुख्ता है, आपके दलाइल भी पुख्ता है, आपका रब तबारक व तआला भी अहकमुल हाकिमीन है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। ठीक है ना? तो याद रखें, सिर्फ एक तामीरी सोच और फिक्र और हालात जो है ना, इस वक्त जो हमारे सामने, सिर्फ वो हम सामने रखकर, ताकि कबल इसके के आने वाले वक्त में मजीद हमारे लिए कोई परेशानियों के दरवाजे खुले, तो हम अपने बयानात को, इन चीजों को मौजू बनाएं, कौम को पहले से बताएं कि इल्हाद क्या है और उनकी सोच क्या है और वो दुनिया में क्या चाहते हैं, ये चीजें बताएं। फिर हमारे असलाफ इस पर बड़ा काम कर चुके हैं। इमाम गजाली, इमाम राजी की तफसीर मफातिउल गैब, आप उसका मुताला फरमाएं। 27 से जायद उलूम को आपने टच दिया उसमें, और ये तो एक तहकीकात के लोग हैं ना कि यहां तक, लेकिन इमाम राजी ने कौन सा टॉपिक है जिसको तफसीर कबीर में लेकर नहीं आए? साइंसी नुक्ता नजर से देखो तो वो तफसीर है, तसव्वुफ में देखो तो वो तफसीर है, गो के वो शाफी। फिका के हवाले से देखो तो तफसीर कबीर है, उसूल और कवायद और ज़ाब्तों के हवाले से देखो तो तफसीर कबीर है। ये एक तफसीर की बात कर रहा। तो इतने दलाइल उन्होंने इनके दिए, और इमाम राजी ने, इमाम गजाली ने इनसे पहले, और 606 हिजरी मुतवफ़ा इमाम राजी, और पहले इमाम गजाली, और उससे पहले जब वासिल बिन अता मोतज़ली सन 80 हिजरी में पैदा हुआ और 131 में ये मर गया, उसके जनाब 100 साल बाद तकरीबन तशरीफ लाए हजरत अबुल हसन अशरी। और जिस तरह उन्होंने इन फितनों का मुकाबला किया, वो फितने हर दौर में मुख्तलिफ रहे। फितने तो थे, हमारे असलाफ ने इस पर जो उस वक्त काम किए, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने, आपने कवाइदुल अकाइद पर एक पूरी किताब लिखी, और अल इक्तिसाद फिल इतिकाद पर आपने किताब लिखी, तहाफतुल फलासिफा आपने किताब लिखी, मिशकातुल अनवार, मुंतज़ मिनत दलाल, ये सारी आपकी किताबें। इमाम राजी मतालिब आलिया, निहायतुल उकूल, अरबाइन फी उसूलुद्दीन, फी उसूलुद्दीन, मबाहिसे मशरकिया, हिकमतुल इशराक, और इस तरह शेख शहाबुद्दीन
हिकमतुल इशराक, और फिर शरह मकासिद अल्लामा तफ्ताज़ानी और मकालातुल इस्लामीयीन इमाम अबुल हसन अशअरी। ये कोई बहुत सारा काम उस दौर के चैलेंजेस और उस तरह का काम ये हमारे हजरात ने किया। फिर आज का दौर और आज के चैलेंजेस और आप और हम और हमारी सोच और हमारा ये इस वक्त जो हमारा हाल है जी, इस पर तो दुख ही किया जा सकता है कि हम जिधर चले गए ना उधर ना जाएं। हम थोड़ा एक समझो कि एक बंदा जमीन पर खड़ा होता है, उसकी निगाह कहां तक जाती है, फिर एक बंदा जनाब 2 फुट ऊपर जाता है, फिर जनाब एक बंदा समझो कि 50 फुट बुलंदी पर जाता है। तो क्या ख्याल है, जो जमीन पर खड़ा था या 50 फुट ऊपर, दोनों का देखना बराबर है? बोलो, दोनों का देखना बोलिए बराबर नहीं है। जो वो मीनारे पाकिस्तान के आखिरी हिस्से में खड़ा देख रहा है, वो नीचे वाला तो नहीं देख रहा। तो ये तो एक मैंने मिसाल दी है। इस वक्त जिन चैलेंजेस का इस्लाम को सामना है, वो इससे भी कहीं ऊपर बात जा चुकी है, इससे भी बात बहुत आगे निकल चुकी है कि जो हम मुसलमान हैं, जो एक दीनी इदारों के मेरे दोस्तों हम लोग हैं, जो एक खास चार दीवारी के अंदर, अगर हमारे अंदर भी यूरोप की सोच पैदा होना शुरू हो चुकी है, तो फिर काम तो उन्होंने कर दिखाया, हमने क्या किया? जिन्होंने उनके आगे पुल बांधने थे, उनके आगे खड़ा होना था, हम तो छोटी छोटी मामलात के अंदर उलझ चुके हैं। लिहाजा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि किस तरह से इन चीजों ने खत्म होना है। लेकिन बात यह है कि जिस टॉपिक को आज हमने छेड़ा है, इस टॉपिक पर भी तवज्जो की जरूरत है। और जो चंद बातें एक दर्द और एक फिक्र पर की हैं, अल्लाह करे कि हमारे ये जो तलबा हैं, ये आने वाले वक्तों को देखकर समझकर कुरान और सुन्नत का मजबूती से मुताला करें, मेहनत के साथ, लगन के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ें और फिर अपने दिनों के अंदर रखें कि हमारा मुकाबला किन लोगों से होने जा रहा है और उसी तरह की हमें तैयारी चाहिए। अगर एक बंदे से लड़ना हो ना, तैयारी उसी तरह की चाहिए। अगर 10 से लड़ना हो तो तैयारी उसी तरह की चाहिए, और 100 बंदे से लड़ना हो तो उसी तरह तैयार होना होगा। और एक तरफ पूरा जिंदगीयत, इल्हादियत की सोच और इतनी तेजी के साथ हो, उनके साथ लड़ना होगा। तो फिर हमें उसी तरह की ताकत, कुव्वत, इल्म, अमल। अच्छा, एक बात कर दूं, एक बात ये करने लगा हूं कि जहां आपके जाहिरी ताकत और कुव्वत की जरूरत है, उसके साथ साथ आपकी रूहानियत की भी बड़ी कुव्वत की जरूरत है। पीर मेर अली शाह ने उस बदमाश का जो मुकाबला किया था, दोनों चीजें आपके पास थी, उलूम जाहिरिया में भी मजबूत और रूहानियत में भी मजबूत, कि जिस तरफ से आएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये सोच हमारे अंदर कब पैदा हो, समझो? तो इसलिए मेरे अजीज तलबा, मेरे दोस्तों, इन चीजों को लेकर अपनी जिंदगी का सफर करें। और अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो दौड़ लगा दे। दौड़ लगाई है तो आपकी समात जब सुने, जबान जब बोले, आंख जब देखे और दिल में अगर कोई फिक्र आए, तो वो यही हो कि इतनी चैलेंजेस का सामना है, तो या अल्लाह मैं क्या इसमें कोई हिस्सा डाल सकता हूं? मैं जो इतनी ताकत इल्मी रूहानी तो अता कर देगा मालिक कि मैं भी इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकूंगा, और मैं इस पर कितनी मेहनत करूं तो मुझे तौफीक दे। तो जब इस तरह की सोच पर मेरे अजीजों आप उठेंगे ना, तो ये जो कुछ मैंने बताया, ये आपके आगे जीरो है, जीरो है, जीरो। ये नतीजे है, समझा भी कि नहीं? इसलिए अगर पहली बातें मैं ना करता तो आप कहते चलो जो जिनका वजूद ही नहीं है, छोड़ो जी, क्या बात करनी। पहले मैंने वो बताया कि इस वक्त वो कहां पे खड़े। अब मैंने बताया कि जो आपका इल्म है, आपका आपकी स्टडी है, जो आपकी स्टडी के जराए हैं,
क्या वो कमजोर है? हरगिज कमजोर नहीं। हमें उन्हें अपनाने की जरूरत है जिस तरह हमारे असलाफ ने अपना कर दीन मिल्लत की खिदमत और हर दौर के चैलेंजेस का मुकाबला किया। तो क्या ख्याल है जी, कोई बातें दिल में बैठ गई हैं? तो बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जनाब इसमें इज्जतें और तरक्कियां और किबला शाह साहब की सरपरस्ती में माशाल्लाह पूरे पंजाब के अंदर बड़ी मेहनत और कोशिश से काम कर रहे हैं। अल्लाह आपकी खिदमत कबूल फरमाए। अब जरा दो तीन बातें बड़ी मोहब्बत और बड़ी प्यार से आपसे कर लूं, इजाजत है? आप फ्रेश माहौल में जो बातें कर रहा हूं ना, ये फ्रेश माहौल में ही होनी है। अगर ज़हन पर दबाव है तो हरगिज नहीं। ठीक है, इस सारे काम के लिए जितनी बातें हुई हैं, सेहत भी बड़ी जरूरी है। सेहत भी, बोलिए, सेहत भी जरूरी है। और सेहत को बरकरार रखने के लिए कुछ लवाजिमात हैं, इन्हें गाहे गाहे अपना लिया करो। ठीक है, क्यों? सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पहले तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, ये भी एक तबीयत का हिस्सा होना चाहिए। समझ आ गई कि नहीं? हर वक्त जलना, हाँ, जलने की जहां जरूरत है वहां जरूर जली। जहां खौफ खुदा की जरूरत है तो हमारे असलाफ को हमने देखा कि जैसी हदीस आई वैसा उनका मिजाज आया। अगर मोहब्बत और इश्क रसूल की बात है, हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कराए हैं, तो एक मुहद्दिस की वही सोच है। अगर अल्लाह के नबी क़यामत, फिक्र, आखिरत, कब्र, निजाम, वो बात आई है तो वो मिजाज है। तो आज वो हमारा उस्ताद हदीस का पैगाम पहुंचाता है तो उसके मिजाज के अंदर भी वही चीज है। लिहाजा इसलिए आपके अंदर भी ये चीजें होनी चाहिए कि कभी हमारा ये जो इस्तेज़ा है, मुस्कुराना है, बाज दफा हम हद क्रॉस करते हैं। इतना आगे भी ना जाइए और इतना पीछे भी ना रहिए कि अपना जो एक हेड दिमाग अल्लाह ने हमें इतना ताकतवर दिया है, उसको हर वक्त दबाव में, प्रेशर में रख रख कर हम उसको खत्म कर दें, तो हम काम क्या करेंगे? इससे आगे निकले, ये सोच खत्म कर दें। कुछ नहीं होता। अपना दिन रात 24 घंटों को तकसीम रखा करें, अपनी एक तकसीम कार बनाएं, अपने वजूद को भी टाइम दें, फ्रेश होने के लिए भी टाइम रखें, अपने जनाब पूरे निजाम को। वगरना जब तक ताकत है खूब लड़ेंगे, और जब जनाब रह गए, चाहे जवानी की हालत में, तो फिर रह गए। ये क्या हुआ? फिर हमने वजूद को टाइम देना भी चाहा लेकिन दे ना पाए। चलो खैर जी, कुव्वत हाफिजा के लिए एक दो पॉइंट दे रहा हूं। जब आप मुताला कर रहे हो, जिस वक्त तहकीकात आ रही हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने हमें हर चीज बताई है पहले ही, है जी। जब आप मुताला कर रहे हो, मुताला करते करते या पढ़ते पढ़ते तबीयत उकता जाती है। और हम साइंसी इन चीजों के खिलाफ नहीं, जहां साइंस हमारे खिलाफ है वहां हम उसके खिलाफ हैं। और जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जहां पे वो आते हैं, तो हम कहते हैं ये इनकी सोच नहीं है, ये तो अल्लाह के नबी की सोच है, इन्होंने इसको कबूल कर लिया है, हम तो पहले भी कबूल किए हुए। बात समझे? लेकिन उन्होंने इस चीज को ताज़ा कर दिया है। तो लिहाजा जब आप मुताला कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते दिमाग थक जाता है, काम नहीं करता। और खास तौर पे सुबह शाम, और या जब भी मौका मिले 2-3 मिनट के लिए ये काम लाजमी करें। दीगर औराद और वज़ाइफ तो किबला शाह साहब मौजूद बैठे, मुझे उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पर अर्ज करता हूं कि एक तहकीक ये है कि अगर एक आदमी अपने ये नाखून जो है ना, इनको इस अंदाज में चला लेना, मिनट 2 मिनट, इससे ये फायदा होता है। आप कर लें थोड़ी देर, कोई बात नहीं। तो ये चीज जो होती है, इससे आपका बराह रास्त तहकीक साइंस की, डॉक्टरों की, जिन्होंने सालों लगाए, वो कहते हैं इसका असर दिमाग पर पड़ता है और दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो लिहाजा अगर थोड़ा सा हम बैठे बैठे जहां बैठे हैं ये कर लें, तो इससे हमारा दिमाग फ्रेश होगा। और दूसरा, सर दर्द, और ये चीजें आती हैं बाज दफा, जनाब लेट जाओ यार,
जब दिमाग ही काम नहीं कर रहा तो क्या करें। उसके लिए भी बड़ी आसान सी चीज हमारे सामने है कि आप अपने हथेली को सर पर यूं रखें और थोड़ा इससे दबाव डालें, फिर सर से हथेली की तरफ यहां तक के मुनासिब कपकपी तारी करें, और इसी तरह यहां दाएं बाएं और आगे पीछे। जब आप ये 3 बार ऐसा करेंगे तो ये शरियानों के जो मसाइल हैं, हम रात दिन चूंकि काम करते हैं, फिर मुख्तलिफ माहौलों का, हालात का सामना करते हैं, तो जब आप 2-3 टाइम ऐसा कर लेते हैं तो आप गोया के इसको एक्टिविटीज में तैयार कर लेते हैं। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बैठे बैठे जहां बैठे हैं वहीं पर ही आप इससे फायदा उठाएं। और दिल के हवाले से एक आम इस्तिलाह है, इसको बोला जाता है हार्ट मुद्रा। ये क्या होता है? ये खुदा की कुदरत है इनका। अब हुजूर की तो हदीस है ना, अल्लाहुम्मा या कवियुल कादिरुल मुक्तदिर कव्विनी व कव्वि कल्बी। हुजूर तो पहले ही फरमा गए, लेकिन आज की तहकीकात यहां तक पहुंची हैं कि जब आप बैठे हों सुबह दोपहर शाम, कोई 2-3 टाइम ऐसे रख लें कि आप इस अंदाज में जो मैं करूंगा ना, इनके असरात बराह रास्त दिल की तरफ जाते हैं। अगर दिल का कोई मामला है तो इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी, अगर नहीं है तो अल्लाह उसे कायम दायम रखेगा। लेकिन याद रखें, जब सैलाब आ जाए तो बांध नहीं बांधे जाते, बांध पहले ही बांध के रखे जाते हैं, क्योंकि खतरात तो लायक होते हैं। तो लिहाजा ये इस अंदाज में आप करेंगे कि ये बीच वाली उंगली, इसको यूं दबाएं, इसको साथ मिलाएं, शहादत की ये उंगली जुदा रखें, अंगूठे जुदा रखें, और ये वाली भी जुदा रखें, नीचे वाला हिस्सा साथ मिलाएं, और अपने दिल के पास इसको यूं रख लें। तो जिससे कम से कम 2-3 मिनट अगर आप ऐसा रखते हैं, साथ सुभान अल्लाह की तस्बीह करते जाएं, अल्लाह अल्लाह करते जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं, 2-3 मिनट अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके दिल का ये निजाम इतना एक्टिव रहेगा कि उसमें कहीं चिकनाई या किसी भी वजह से कहीं रुकावट पैदा होना शुरू हो चुकी है तो ये सारा निजाम आपका ये एक्टिव रहेगा। तो ये याद हो गया, कर लेंगे आप इंशाल्लाह। तो ये बिल्कुल आसान है, इजी है। ये फ्रेश होने के लिए मैंने कहा यहां भी तो काम बात कर ली जाए ना, तो ये मैंने आपको फ्रेश किया है। बाकी यहाँ पर रूहानियत रूज पर है, अल्लाह का फजल है। तो ये चीजें आप करें इंशाल्लाह, इससे आपको फायदा होगा। और खाना हजम करने के हवाले से आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, आप खाना खाते हैं जी, तो सुन्नत तरीके देखें। हजूर ने फरमाए कि खाना कैसे कैसे खाओ, 2 जानों बैठ जाओ, पांव खड़े करके बैठ जाओ, और एक पांव खड़ा कर लो, एक बैठ जाओ, देखे ना ये। और आज की तहकीकात क्या है कि जब आप पहले नहीं बैठे हो, खाना खाने के बाद सिर्फ 5 मिनट 2 जानों बैठ जाओ, 2 जानों बैठ जाओ, और जैसे हम तशहद में बैठते हैं ना, पांव पीछे से दोनों बिछा दी, 2 जानों बैठे, और 2 जानों बैठने के बाद आपने सिर्फ 5 काम करने हैं जो सिर्फ दोनों हाथों के मुतालिक है। 30 सेकंड, बस 30 सेकंड। और इसमें यह भी ख्याल करें, जो हम खाना रोटी खाते हैं ना, हम बाज दफा बड़ी उजलत में खाते हैं, और गरम रोटी खाना तो बिल्कुल बंद कर। जो मैदे की सोजिश है, इसके अंदर मेन रोल जो है वो ये जो हम गर्म अशिया का इस्तेमाल करते हैं उनका होता है। ये हमारे ब्लड के अंदर ठहराव पैदा करता है, और हम मजे से भी गर्म चीज खाते हैं। इसके बगैर ना हमारी रोटी अंदर जाती है, ना सालन अंदर जाता है। हालांकि अल्लाह के नबी पहले ही फरमा चुके हैं कि तुम अपनी इन चीजों को ठंडा करके खाओ। ये तहकीकात तो अब मंजर आम पे आई, अल्लाह के नबी तो पहले ही फरमा गए कि तुम अपना खाना इस तरह खाओ। और आज की तहकीक कहती है 32 मरतबा खाना खाओ तो एक लुकमे को इतना लिक्विड करके खाओ कि ये तुम्हारे मैदे में जाए, तो तुम्हारा मैदा जो है, ये आपको पता है कि जमीनी बीमारियों का मंबा मरकज यहीं से ही जाता है। और अगर ये सही है तो सारे निजाम को ये कवर करता है। अगर चंद चीजें हमारे वजूद में, और वो चंद चीजें अगर हम उनको बेहतर रखते हैं तो हमारा सारा जिस्म बेहतर रहता है। तो बहरहाल मैं आखिरी बात अर्ज कर दूं, वो जनाब यही है कि आप जब खाना खा लें तो 2 जानों बैठ जाएं। कैसे बैठना है? 2 जानों। थोड़ा बैठ के दिखाएंगे आप, क्योंकि इसमें जरा चीजें अमली भी होती है, मुझे खुशी हो जाएगी, जरा राहत होगी। अब अकाबरीन से नहीं मैं अर्ज कर रहा हूं, ये उनका प्यार है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं।
और फिर आपको पता है हदीस जिब्रील में मौजूद नहीं है, पैगाम तो हमें वहीं से अदब का मिल गया था कि जब जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आकर बैठ गए थे। हैं जी, कैसे बैठे थे हदीसों में मौजूद है ना। तो लिहाजा इसलिए दो जानों बैठकर आपने पांचों काम इसी हाथ के साथ करने, और आप 2-3 दिन में आप देखते जाएंगे कि आपके खाने का जो निजाम है वो हजम की तरफ चल पड़े। ठीक हो गया जी। आप जब बैठ रहे हैं दो जानों, उसके बाद आपका ये जो हाथ है दाएं हाथ से आप शुरू करें, और आप ये देखें ये वाला हिस्सा जो है ना, यहां पर कम से कम 30 सेकंड ऐसे करना है। 30 सेकंड आराम से यूं करते रहे ऐसा। फिर इसी तरह दूसरे हाथ बाएं हाथ को लें और यहां पर इस तरह करें। फिर ये शहादत की जो बड़ी उंगली है इससे थोड़ा नीचे यहां आकर इस तरह से करें। फिर इसके बाद आप सेंटर में ये 2 लाइनें जा रही हैं, इसके साथ जो छोटी लाइन है दूसरी वाली, उसके ऊपर 3 बार ऐसा करें। 3 बार कम से कम, यानी 30 सेकंड तक 3 बार, 5 बार, 7 बार करें। फिर इसके बाद इसी हाथ को उल्टी साइड यूं करते रहे और फिर दूसरी साइड को लें। फिर आखिर में ये शहादत की उंगली ऊपर से यूं करें। तो जनाब इससे जो एक जदीद तहकीक है, ताकि कोई ये ना कहे कि हम जदीद सोच और फिक्र को नहीं अपनाते या हम मुखालिफ हैं। मेरे आज के इस पैगाम में ये भी याद रहेगा। वह आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो